Okay. Good morning, students. Hope you all are fine. Okay. Now, let us try to start with a fresh chapter. Okay. All these days we were covering history. Now today I will start with civics, lesson 4. That is understanding laws. Okay. Now, as far as laws are concerned, okay, there are three organs of the government. We know this. Which are the three organs? Which are the three organs of the government? Nobody. Piyush? Piyush? Have you joined? Abhishek Giri? हाँ? Three types of laws. लोग सब है ना बेटा. Three types of laws. This is very bad बेटा. This is very bad. High school में जो है ये चीज आपसे पूछी जाएगी. हाई स्कूल में आपसे पूछा जाता है. हाँ? Local government. No. See, there are three organs of the government. Okay? Legislative, executive. Now they will tell. The first one is your executive. Okay? Every time I tell you people, every time you people forget. Okay? Then it is the legislature. Okay? And finally you have the judiciary. What is the role of the executive? Executive क्या करता है? हाँ? मैम लॉ को एग्जीक्यूट करता है. Yes, to implement the law. Implement का ही अदर वर्ड जो है execute है. ठीक है ना? Executive जो Yes, है, executive जो है वो law को implement करता है. Legislature क्या करता है? What is the function of the legislature? Order लेता है. हाँ, order लेता है. Who is this? Order लेता है. कानून बनाता है. लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाता है. सी हमारे देश में लेजिस्लेचर क्या है? आफ्टर गोइंग थ्रू द थर्ड चैप्टर, इफ यू डोंट नो व्हाट इज लेजिस्लेचर, इट इज वेरी बैड. इट इज वेरी बैड. ये बहुत गलत बात है. हमारा थर्ड चैप्टर क्या था? व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? था ना? Yes, Yes, ma'am. एंड व्हाट इज द पार्लियामेंट? Yes, ma'am. व्हाट इज द पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट से हम क्या समझते हैं? कृपाकर, out of the three organs, our Indian Parliament comes under which category? Executive, legislature. ले भैया, तुम लोग तो मेरा एकदम सारा एसएसटी निकाल दोगे. हाँ? See, the function of the judiciary is to interpret the law. Okay? बार बार आप लोग जो है इस चीज को जो है भूल जा रहे हैं. ये बहुत गलत बात है. ओके? ये तीन ऑर्गन्स जो है, अगर आपको सिविक्स पढ़ना है, समझना है, ओके, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, यू विल हैव टू रिमेंबर दीज थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ओके? आपको सरकार समझना होगा. सरकार तीन स्तर पे बनती है. हाँ? केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे. ठीक है ना? ओके? और जो है ये तीन ऑर्गन्स आपको समझना होगा. द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी. ओके? नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी सी, ओके, हु इज मेकिंग द लॉ? It is the legislature who is making the law. And what we see at the central level. Okay? केंद्र पे हमारा legislature क्या है? केंद्र पे हमारा legislature जो है इंडियन पार्लियामेंट है. The Indian Parliament is our legislature. Who is this? The Indian Parliament is the legislature. सारे कानून हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं. पता है ना? हाँ? At the central level, okay, it is the parliament that is making the law. And at the state level, who is making the law? राज्य स्तर पे कानून कहाँ बनता है? Yes? अर्पिता? पार्लियामेंट. हाँ, राज्य स्तर पे पार्लियामेंट होता है. पूरा पार्लियामेंट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया. अभी तक इनको ये नहीं पता कि कानून कहाँ बनता है. ग्रेट बेटा, ग्रेट.
ऑल माई SST विल बी इरेज्ड फ्रॉम माई माइंड. मेरे दिमाग से ना सारा जो है डिलीट हो जाएगा. राज्य स्तर पे जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, it is the state legislative assembly where the laws are made at the state level. ठीक है ना. केंद्र स्तर पे जो है पार्लियामेंट में सारे कानून बनते हैं. और ये कानून बनाता कौन है? ये कानून बनाते हैं हमारे प्रतिनिधि. देखो ये डॉगी को भगा रहा है कि पता नहीं किसको भगा रहा है सुबह सुबह. Listen. Okay, what we see is, as far as understanding laws is concerned, okay, first you'll have to understand which organ is responsible for making the laws. Okay, and we see that there are 3 organs of the government. Okay, the executive, the legislature, and the judiciary. And now the function of the legislature, it is to make the law. So we know that the legislature is making law for the country. Now at the central level, the legislature is the Indian Parliament, संसद भवन हमारा. और राज्य स्तर पे जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. यूपी का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपको पता है, इट इज देयर इन लखनऊ, हजरतगंज. ओके, वेयर all decisions related to the state of UP are taken. Okay, and this Indian Parliament. Now again, if I ask you, what does the Indian Parliament comprise of? Okay, what will be the answer? Yes, Muskan, tell me, what does the Indian Parliament comprise of? President. Only president. Huh? No, ma'am, Rajya Sabha and Lok Sabha. Ma'am, Rajya Sabha and Lok Sabha. Yes. Okay, the Parliament comprises of all these 3. The Parliament comprises of, okay, this is very bad. हाँ, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी है? हमारे देश में हमने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है. ओके, वी हैव टेकन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वी हैव टेकन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. किसको फॉलो करके? किस देश की संविधान को फॉलो करके हमने लिया है? बताओ. अमेरिका. नो बेटा. मैम US. ना बाबू. मैं UK. Yes. UK. England. UK. Okay, from the Constitution of United Kingdom. Okay, Constitution of United Kingdom. देखो, हम लोग 200 साल, लगभग 200 साल जो है हम लोग ब्रिटेन के अंडर में रहे हैं. ओके, ब्रिटिश हम पे शासन किए हैं, तो हम लोग इस व्यवस्था के आदी हो गए थे. ठीक है ना. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसी में जो है ओके बदलाव लाके इसी सिस्टम को कंटिन्यू करें. ठीक है ना. तो हमारे देश में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है. एंड व्हाट वी सी, द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है ना. जहां तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का सवाल है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ओके, इट इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स. ठीक है ना. बहुत सारे देश जो है, ठीक है ना, वो ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट का अनुसरण करते हैं. इसीलिए जो है ओके, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसको जो है सारी जितने भी विश्व के पार्लियामेंट है उनकी माता के रूप में इसको माना जाता है. इट इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स. ओके, व्हाट आर द 2 हाउसेस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? The 2 houses of British, ब्रिटिश पार्लियामेंट पूछ रही हूँ मैं. नो, सब जितना भी मैं ना एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ वो सारा आप लोग जो है एकदम से वाइप आउट कर दे रहे हैं. व्हाट आई शुड डू इज, ओके, आई शुड स्टिक टू योर बुक्स. ठीक है ना. आपके बुक में जो है वो मुझे पढ़ा के खत्म कर देना चाहिए. एक्स्ट्रा एफर्ट लेना बेकार है. आप लोग कुछ याद नहीं रखते हो, कुछ भी याद नहीं रखते हो. The 2 houses of British Parliament, the 2 houses of
हम लोग ये इस चीज को जो है कैसे भूल सकते हैं? हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, सिविक्स में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग भूल जा रहे हैं। हाँ, सी the two houses of British Parliament are what? House of Lords. It is House of Lords and House of Commons. हाँ, रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हास्टिंग्स की इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है कहाँ पे लाई गई थी? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के और वारेन हास्टिंग्स जो थे, इन दोनों के खिलाफ इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही लाई गई थी ना? हाँ, यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, एंड द इमेज इज आल्सो गिवन। हाँ, आपकी हिस्ट्री की बुक आप कवर कर चुके हैं, लेसन 2, एंड द इमेज इज आल्सो प्रोवाइडेड। बेटर ट्राई टू हाँ, ठीक है ना? इन चीजों को आप भूल जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। हाँ, आप कुछ नहीं समझ पाओगे, पीछे का आप भूलते जाएंगे। तो सिविक्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। सिविक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। आई हैव डन एमए इन पॉलिटिकल साइंस, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में है। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच आई लाइक दिस सब्जेक्ट। नाउ लेट अस कम बैक टू द लेसन। जिनके पास बुक नहीं है मैं उनके लिए ये लिख दे रही हूँ। ओके, हु इज दिस? सिविक्स बाय सुनीता मैम। हाँ, कौन है ये? हाँ, सुधर नहीं रहे हो तुम लोग। अब मैं पता करके जो है ब्लॉक करवा दूंगी। उस दिन भी जो है नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद लिख के आया था, और आज देखो सिविक्स बाय सुनीता मैम लिख के आ रहे हैं। हाँ, a government official helps his son. Have a look. I am writing it for those who do not have the book. Go into hiding. Okay, because see his son helps his son go into hiding because his son, okay, has been given a 10-year जेल सेंटेंस। ठीक है ना? 10 साल की जो है कठोर कारावास की सजा जो है, ओके, ये सुनाई गई है। और इस सजा को किसने सुनाया है? सी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला सत्र न्यायालय है। ठीक है ना? जिला सत्र न्यायालय ने जो है, ओके, एक जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लड़की के खिलाफ जो है ये, ठीक है ना, कार्रवाई की गई है। उन्होंने जो है कोई अपराध किया है, अपराधी के जो अधिकारी है उनके लड़के ने जो है ये अपराध किया है। सी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज़ हिज सन हैज बीन गिवन अ 10-year जेल सेंटेंस बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही हैज कमिटेड। प्लीज बेटा, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए थोड़ा शांत रहे, नहीं तो आप वहां से हट जाइए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ दुकान में जाके जो है क्लासेस करते हैं। हाँ, उनके पेरेंट्स जो है कस्टमर्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं और वहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। See, I don't know how to teach. Have a look. A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. हाँ, अब आपको क्या लगता है? एक सरकारी अधिकारी होने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से चलेंगे? आपकी सरकार है, हाँ, सरकार आपके हिसाब से चलती है। आपका बेटा जो है अपराध करता है और कहाँ आप अपने बेटे को जो है कानून को सौंपेंगे? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बेटे को जो है, ओके, छुपा दे रहे हैं, उसको अंडरग्राउंड कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिला सत्र न्यायालय ने जो है 10 साल की जो है कठोर कारावास की सजा सुनाई है जिस अपराध को उस बच्चे ने किया है। ओके, ठीक है ना? उसके लिए जो है जिला सत्र न्यायालय ने जो है ये फैसला दिया है। तो आप कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमें जो है देश के कानून के हिसाब से चलना चाहिए।
ओके। और एक तरफ जो है हम कानून का जो है मजाक उड़ा रहे हैं, हम अपने जो हमारी जो अथॉरिटी है, हमारे पास जो अधिकार है, हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। यस आर्या सिंह, व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड? आर्या सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। आ रही है। हाँ, Your voice is clear. आर्या सिंह, why you have raised your hand? Unmute yourself. कभी भी ये बैठ के पढ़ाई करते हुए मुझे नहीं दिखाई देती है, हमेशा ये घूम के ही पढ़ाई कर रही होती है। Now this is clear children. Okay? एक सरकारी अधिकारी हैं, वो अपने बेटे को जो है छुपा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे को जो है जिला सत्र न्यायालय ने जो है 10 साल का कठोर कारावास का जो है कठोर कारावास की जो है सजा सुनाई है। क्या आपको लगता है कि वो कानून के साथ जो है देश का जो कानून है वो उसका सम्मान कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? कृपाकर, इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल रेस्पेक्टिंग द लॉ ऑफ द कंट्री? No, ma'am. What No, is ma'am. doing? What he is doing? He is violating the law ना? वो जो देश का कानून है उसका उल्लंघन कर रहे हैं ना? Yes, ma'am. अब मान Yes, लीजिए, ma'am. now suppose I will give you an example. Okay, I will give you an example. Okay, he is violating the law. Okay, he is hiding his son so that his son is not able to receive the punishment. अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको सजा तो मिलेगी ना? Isn't it? अगर ऐसे ही होता रहा तो क्या हो जाएगा? Crime rate बढ़ जाएगा. Yes. What will happen? Okay. If it continues, what will happen? Yes, ma'am. If it continues, people will commit crime. People will, they will commit crime and go into hiding. ठीक है ना? कोई भी अपराध कर लेगा और अपराध करके जो है जाके वो छुप जाएगा। ठीक है? अब ऐसे में क्या होगा? जो आम जनता है, जो निर्दोष जो नागरिक है हमारे देश के, वो बेमतलब के परेशान होंगे। वो बेमतलब के परेशान होंगे कि नहीं होंगे? आप देखते हो ना, जो गरीब लोग होते हैं, जो बड़े अधिकारी लोग जो होते हैं, उनके बेटे बेटी जो है रैश ड्राइविंग करते हैं, ड्रिंक करके जो है ड्राइव करते हैं। ओके, यू आर नॉट आस्क्ड टू डोंट ड्राइव ओके आफ्टर ड्रिंकिंग। तो ठीक है ना, लिकर का जो है सेवन करके, मदिरा का पान करके जो है, आप जो है ड्राइविंग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ड्राइव योर व्हीकल आफ्टर ड्रिंकिंग। व्हाई? इट इज अगेंस्ट द लॉ। ये कानून के खिलाफ है। आपको पता होगा सलमान खान जो हमारे एक्टर है, उन्होंने जो है रैश ड्राइविंग करके बहुत सारे जो मजदूर फुटपाथ पे सोए हुए थे उनको उन्होंने कुचल डाला था। ठीक है ना? और हमारे जो देश के जो बहुमूल्य जानवर हैं उनको भी जो है शिकार करना मना है। कैन यू टेल मी द एनिमल विच वाज हंटेड बाय हिम? यस, ठीक है ना? ब्लैक बक विच, ये जो है एक ऐसा एनिमल है जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार, ठीक है ना? काला हिरन जो है ये लुप्त होने के कगार पे आ गया है। और जब हम साथ हैं की शूटिंग चल रही थी, ठीक है ना, जयपुर में, दैट टाइम सलमान खान ही हंटेड दिस एनिमल। So what is this? If there is no law, so what we see is laws are necessary to what? कानून क्यों जरूरी है? कानून इसलिए जरूरी है ताकि लोग जो है क्राइम ना कर सके। टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग क्राइम। और अगर वो क्राइम कर रहे हैं तो उनके अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर हम कोई अपराध करेंगे तो हमें उसकी सजा मिलेगी, चाहे हम सेलिब्रिटी हो, चाहे हम जो है
बड़े बड़े अधिकारियों के जो है बेटे हैं, आदमी हो चाहे आम आदमी हो। ठीक है ना? ओके, so what we see is laws are very much necessary. हमारे देश में जो है कानून की व्यवस्था जो है ये इसीलिए बनाई गई है। और आपको पता होगा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों ऑर्गन्स में से किस ऑर्गन को स्वतंत्र रखा गया है? Which organ is kept independent of the two? Tell me. मैम कौन कौन से? Which organ of the government is kept independent of others? Executive, legislature, judiciary. इन तीनों में से स्वतंत्र किसको रखा गया है? हाँ? हो गया बेटा। मुझे लगता है कि सिविक्स मुझे लेसन I will have to start civics from lesson 1, I think. हाँ? मैम तीनों। चुप, तीनों। Of the three organs, okay? See? कुछ भी बोल जाएगा। हाँ? Of the three organs, the judiciary is kept independent. न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। बहुत आप लोग जो है मिस्चीवियस हो गए, नॉटी हो गए, एकदम कुछ भी याद नहीं रख रहे। हाँ? सी? और ये न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा गया है बताओ? Why is the judiciary kept independent of the other organs? कृपाकर, मैम इनको इंडिपेंडेंटली जस्टिस करना पड़ता है। So that, okay, so that the executive and the judiciary and the legislature, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, ये जो है न्यायपालिका के फैसले को जो है प्रभावित ना कर सके, so that the executive and legislature do not influence the, okay, do not influence the justice. तो हमारे देश में जो न्यायपालिका है उसके जिम्मे काम क्या है? उसके जिम्मे काम है न्याय देना, ठीक है ना? हाँ, नागरिकों की जो है दिक्कतों को जो है सुनना, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको समझना और समझ के जो है उनको न्याय देना, isn't it? अगर मान लो ये सरकारी अधिकारी जो है, ओके, अगर हम देख रहे हैं कि जुडिशरी को जो है स्वतंत्र नहीं रखा गया है, ओके, तो ये सरकारी अधिकारी क्या करेगा? ये सरकारी अधिकारी जो है अपने ओहदे का इस्तेमाल करेगा, अपने पैसे का इस्तेमाल करेगा, और जो जज है, ठीक है ना, अभी आप देख रहे हो ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो फैसला दे रही है 10 साल का कारावास, ओके, तो ये अधिकारी क्या करेंगे? जो जज है उसको अपने फेवर में फैसला देने को बोलेंगे, ओके, और ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में जो है हमारे पूरे देश की व्यवस्था जो है वो, ओके, गड़बड़ा जाएगी। जो दोषी है, जो व्यक्ति दोषी है, जिसने अपराध किया, वो खुलेआम घूमेंगे, और जो व्यक्ति किसी ने कुछ अपराध ही नहीं किया है उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि तुम ये पैसा ले लो, लगेगा, तुम ये पैसा ले लो और लेके इस अपराध को अपने सिर ले लो। आप देखते हो ना बहुत सारी मूवीज में, आप क्या देखते हो? बहुत सारी मूवीज में आप नहीं देखते हो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने बेटे द्वारा किए गए क्राइम को अपने ड्राइवर को सौंप देते हैं, ड्राइवर को कहते हैं कि मैं तुम्हारे परिवार का पूरा देखभाल करूंगा, इस अपराध को तुम अपने नाम ले लो। हाँ, देखते हो ना? तो इसीलिए इट इज बिकॉज ऑफ दिस। अब मान लो ये लेजिस्लेचर है और लेजिस्लेचर हमें पता है कि इसमें पूरे देश के प्रतिनिधि बैठ के फैसले लेते हैं। अब मान लो आज के डेट में अगर पीएम मोदी को, ठीक है ना, पीएम मोदी को हम अगर अधिकार दे देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित करें, ठीक है ना, तो पीएम मोदी क्या करेंगे? जितने भी उनके पार्टी के विरोधी हैं उनको जेल में डलवा देंगे। हाँ, और उनके पार्टी के जो नेता लोग हैं जो भ्रष्टाचारी भी होंगे, करप्ट भी होंगे, उनको वो प्रमोट करेंगे, ठीक है ना? तो फिर हमारा देश क्या लोकतंत्र रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। हाँ, इसलिए नो मैम, नहीं रहेगा, ओके, नहीं रहेगा, ठीक है ना? इन ऑर्डर टू
सेफ। ओके, मैम हमारी लोकतंत्र स्वाधीन था। देखो, हमारी लोकतंत्र की आत्मा क्या है? हमारी लोकतंत्र की आत्मा जो है समानता है। इक्वलिटी इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। वी स्टडीड दिस ना, हम क्लास 7 में भी पढ़े हैं, अभी भी हम पढ़ रहे हैं कि इक्वलिटी इज द Yes, सोल ma'am. ऑफ डेमोक्रेसी। एंड हाउ विल दिस इक्वलिटी बी एस्टैब्लिश्ड? हम लोकतंत्र में समानता कैसे स्थापित करेंगे? हम लोकतंत्र में समानता स्थापित ऐसे करेंगे कि हम जो है इन तीनों ऑर्गन्स में जो न्यायपालिका है इसको स्वतंत्र रखेंगे, ताकि इसको कोई प्रभावित ना कर सके। ठीक है ना? ना तो एग्जीक्यूटिव इसको प्रभावित कर सके, अपने हिसाब से कोई कानून इम्प्लीमेंट कर सके, और ना ही लेजिस्लेचर प्रभावित कर सके, अपने हिसाब से कोई कानून बना सके। लेजिस्लेचर नहीं कर। ठीक है ना? आ गया समझ में इतना? इज इट क्लियर? Yes, ma'am.